નમસ્કાર, નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ઝીરોર કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી. દર્શક મિત્રો, આજે ઝીરોર કાર્યક્રમમાં ચર્ચા વિચારણા કરવાની છે. જે પ્રમાણે 5 એટલે આમ તો કહેવાય ને કે 4 રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની જ્યારે ચૂંટણીનું જે આયોજન થયું હતું ને તેમાં પણ જે રિઝલ્ટની ઘડી હવે અત્યારે તો ગણાઈ રહી છે ને તેમાં પણ દરેક લોકોની નજર આ 5 રાજ્યની ચૂંટણી ઉપર તો જોવા મળી રહી છે. પરંતુ આ 5 રાજ્યમાં સૌથી મહત્ત્વની અને હાઈ પ્રોફાઇલ ઇલેક્શન અને તેમાં પણ રિઝલ્ટ કહી શકાય અને તે છે પશ્ચિમ બંગાળ. આ વખતે પશ્ચિમ બંગાળની જે પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, ચૂંટણીની જે શરૂઆત થઈ ત્યારથી પછી જે પહેલા ફેઝનું જે મતદાન જોવા મળ્યું, બીજા ફેઝનું જે મતદાન જોવા મળ્યું, આજે જે પ્રમાણે જે અલગ અલગ જગ્યાએ જે ફરી એકવાર વોટિંગની બાબત જે સામે આવી હતી ત્યાં પણ અત્યારે તો જે ઘમાસાણ જોવા મળ્યું. આ વખતે જે હાઈ પ્રોફાઇલ આ જે પશ્ચિમ બંગાળની જે આ ચૂંટણી છે ને તેમાં પણ દરેક લોકોની નજર એક જ બાજુ છે કે આ વખતે રિઝલ્ટ કોના તરફી આવશે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે પ્રમાણે બધું જોર અત્યારે લગાવી દીધું છે. કોઈ એક એવા નેતા બાકી નહીં હોય કે જે પશ્ચિમ બંગાળની વિઝિટ નહીં કરી હોય. કોઈ એક એવા કેન્દ્રીય મંત્રી બાકી નહીં હોય કે ના જેમણે અત્યારે ત્યાં પ્રચાર નહીં કર્યો હોય. અને સાથે અમિત શાહ તો જે છેલ્લા 10-15 દિવસથી જે ત્યાં જે બેઠા હતા ને તેમના દ્વારા પણ એમ કહેવામાં આવ્યું હતું કે ના પશ્ચિમ બંગાળમાં આ વખતે જોવા જેવી થશે. હું અહીંયા જ બેઠો છું, હું જોઉં છું કે અત્યારે તો કયા લુખ્ખા તત્વોએ પશ્ચિમ બંગાળના વોટિંગને રોકાવે છે. જે પરિસ્થિતિ સામે આવી હતી તેની ઉપરથી ચોક્કસ કહી શકાય કે હાઈ પ્રોફાઇલ જે આ ચૂંટણી તો યોજાઈ હતી પણ તેની સાથે દરેક લોકોની નજર પશ્ચિમ બંગાળના જે રિઝલ્ટ ઉપર છે. સાથે સાથે તમિલનાડુ ઉપર પણ આ વખતે નજર જોવા મળી રહી છે. કારણ કે ગઈ વખતની વાત કરીએ તો તમિલનાડુમાં ડીએમકેને જે 45% જે વોટિંગ મળ્યું હતું, એટલે 2021ની વાત કરું છું કે જે વખતે વોટશેર જે પ્રમાણે જોવા મળ્યો તો આ વખતે તેનાથી વોટિંગ વધ્યું પણ છે. ક્યાંક એવી પણ બાબત સામે આવી છે કે ના આ વખતે ડીએમકે અને ડીએમકેમાં ક્યાંક કાંટેકી ટક્કર પણ જોવા મળી રહી છે. અને ભારતીય જનતા પાર્ટી ગઈ વખતે જ્યાં 4 એટલે કે સિંગલ ડિજિટમાં આવી હતી, શું આ વખતે તે એમ કહેવાય ને કે ના ડબલ ડિજિટમાં આવશે કે કેમ, તે પણ એક સવાલ છે. સાથે એક અત્યારે બાબત એવી પણ જોવા મળી રહી છે ટીવીકે કે જે વિજયનની જે ધરાવતો જે પાર્ટી છે તે પણ આ વખતે ક્યાંક જે ઉતાર ચઢાવ જોવા મળી શકે તેમ છે. આસામમાં તો જે હેમંત વિશ્વ શર્માએ જે અત્યારે માહોલ બનાવ્યો છે તેની ઉપર તો ક્યાંક ભારતીય જનતા પાર્ટી જોવા મળી રહી છે. પરંતુ આ વખતે કેરળમાં પણ કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળશે તેના લઈને ચર્ચા વિચારણા કરવી છે. અને આ ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડી ગયા છે ઉમર ગાઝી કે જેઓ વિશ્લેષક છે અને ડૉક્ટર પ્રદીપ મલિક કે જેઓ वरिष्ठ पत्रकार है जी. आ बने सौदी पहला तो स्वागत है. नमस्कार जी. मैं सबसे पहले शुरुआत ही मैं पश्चिम बंगाल से ही करता हूँ इस बार तो, क्योंकि आसाम और पुडुचेरी और सबकी तो बात करेंगे, मगर जो हाई प्रोफाइल जो इलेक्शन था इस बार का पूरे का पूरे भारत में, मैं मात्र कोई एक राज्य की बात नहीं कर, मगर पूरे भारत में जिसकी चर्चा हो रही थी वो था वेस्ट बंगाल. उमर जी, जिस तरीके से अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो जो इलेक्शन हुआ जहाँ पे अगर हम वोटिंग की बात करें तो पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज़ में 92% वोटिंग था और दूसरे फेज़ में भी 91% जो वोटिंग देखने को मिला था. इस बार किस तरीके से देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जो इलेक्शन मोड में तो वो लोग होते ही है, मगर इस बार पूरा का पूरा जोर लगा दिया है वेस्ट बंगाल को जीतने के लिए. और सब लोग यही बोल रहे हैं कि नहीं ज़्यादा वोटिंग हुआ है, तो कहीं पे ऐसा भी लग रहा है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ सकती है. किस तरीके से देख रहे हैं आप पश्चिम बंगाल के रिजल्ट को? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि जो हाई वोटर टर्नआउट है ये अपने आप में शायद बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि हाई वोटर टर्नआउट तभी होता है जब एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होती है आमतौर पे. तो हो सकता है कि टीएमसी की कुछ पॉलिसीज से, कुछ विचारधारा से लोग शायद ज्यादा सहमत नहीं है, तो हो सकता है कि उस वजह से हाई वोटर टर्नआउट हुआ हो. और जाहिर सी बात है बीजेपी इस इलेक्शन को एज अ लिटमस टेस्ट देख रही है आने वाले 2019 के चुनाव के लिए भी, कि उनकी 2029 के चुनाव के लिए भी, क्योंकि उनका जो फुटप्रिंट है वो पूरे भारत में कितना अभी मजबूत है, कितना सशक्त है, ये भी बीजेपी के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा. तो ये बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा इस वक्त है. 2 दिन बचे हैं, सबकी नजरें टिकी हैं इसी के ऊपर. बहुत रोमांचक है, कुछ भी कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ ममता
की जो पॉलिटिक्स है वो 10 साल 15 साल से वो जमी हुई है उस जगह पर। और उन्होंने बीजेपी को अपनी वहां कदम जमाने का मौका नहीं दिया है। लेकिन धीरे धीरे बीजेपी का जो फुटप्रिंट है वो बढ़ता जा रहा है। हर इलेक्शन में आप देख रहे हैं कि करीब आते जा रहे हैं, करीब पहुंचते जा रहे हैं। तो इस इलेक्शन में आपको पता चलेगा कि बीजेपी वाकई वहां पहुंच पाई है जहां वो पहुंचना चाह रही है, या अभी ममता का जो पकड़ है वो बंगाल पर अभी भी मजबूत रहेगी। तो मुझे लगता है कि 2 दिन में ही हमें पता चलेगा। बट हाई वोटर टर्नआउट का क्या रीजन है, ये थोड़ा विश्लेषण का मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में प्रदीप जी, एक बात मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में सिचुएशन बहुत ही मिक्स देखने को मिली थी। वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जो प्रचार किया, कहीं पे ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी इस बार कोई एक पर्टिकुलर कास्ट को या फिर अपने कमिटेड वोट के लिए अभी प्रचार नहीं कर रहे थे, सब लोगों के लिए प्रचार कर रहे थे। वो बहुत अलग अलग तरीके से उन्होंने बात भी की, सब लोगों के बीच में भी वो आए। किस तरीके से देख रहे हैं आप ये रिजल्ट को, क्योंकि सब लोग यही देख रहे हैं कि नहीं, टीएमसी को कहीं पे झटका लगने वाला है इस बार। और जब मैंने भी वेस्ट बंगाल में बात की थी 2-3 पत्रकार से, वो लोग भी यही कह रहे हैं कि नहीं, वेस्ट बंगाल में अभी ऐसा कुछ नहीं होएगा। जिस तरीके से रुझान दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल जो सामने आ रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, मगर वहाँ का रुख कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। आप क्या कहोगे वेस्ट बंगाल के बारे में? यज्ञ भाई, आप उमर भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है कि ममता बनर्जी, ममता दीदी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है और कुछ भी कहना मुश्किल है। बस 2 दिनों की बात है, 48 घंटे और हम सब लोग समझ जाएंगे। लेकिन जो प्रश्न आपने किया यज्ञ भाई, ममता दीदी देखिए पिछले 15 साल से वहां जमी हुई हैं। उन्होंने कांग्रेस की तो सफाया करी थी, कांग्रेस से भी तो निकल के आई थी, वो कांग्रेस की सफाया कर दी। लेफ्ट पार्टीज जो हैं, लेफ्ट फ्रंट, उनकी जितनी सफाई हुई है ना, आप देखिए वो सारे वोट ले गई हैं ममता दीदी। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी, जो एक समय जनसंघ हुआ करता था, एक समय 1 सीट था उनका बंगाल में, आज वो 77 सीट पे आगे थे। पिछले चुनाव में बहुत ही कांटे की टक्कर हुई थी। भाजपा तो यही मानती थी कि वो सरकार बना रही है, लेकिन ममता बनर्जी के साथ उस समय प्रशांत किशोर थे और उन्होंने बहुत डंके की चोट पे कहा था कि अगर 100 भी क्रॉस कर गई भाजपा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राजनीति में वो थे नहीं, वो सिर्फ कंसल्टेंट थे। आज वो राजनीति में है, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। लेकिन उनका वो जो ये कहना था डंके की चोट पे कि अगर 100 भी क्रॉस कर गई भाजपा तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। तो देखिए सच में वो 77 पे रुक गई। लेकिन 77 पे रुक गई और ममता बनर्जी को बहुत बड़ा बहुमत मिला था। बंगाल का ये खूबी रहा है, जब वो कांग्रेस पार्टी थी तो पूरी बहुमत थी, बंगाल वेस्ट लेफ्ट फ्रंट थी तो भी पूरी बहुमत थी, जब ममता दीदी आई तो भी पूरी बहुमत थी। बहुमत मतलब प्रचंड बहुमत, पूरी तो थी तभी तो सरकार बनी, प्रचंड बहुमत। ये पश्चिम बंगाल का क्या कहते हैं, ये खासियत रहा है। जिस पार्टी को भी उन्होंने वोट दिया, दिल से वोट दिया, जम के वोट दिया और पूरी प्रचंड बहुमत थी। ममता बनर्जी, अभी हम लोग कुछ दिन पहले भी जब चर्चा कर रहे थे, जिस दिन सेकेंड राउंड की इलेक्शन एग्जिट पोल की जब हम चर्चा कर रहे थे यज्ञ भाई, कुछ एग्जिट पोल ने दिखाया था कि टीएमसी इस बार शायद चूक जाए और भारतीय जनता पार्टी आगे आ जाए। और उसके बाद एक दिन के बाद फिर से जब एक और एग्जिट पोल आया, वो तो बहुत ही आगे दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस से। लेकिन उस दिन मैंने आपको कहा था कि मेरे को ये जो एग्जिट पोल है वो थोड़े संदेहास्पद लगते हैं। हमेशा वी ऑल नो एग्जिट पोल कभी एक्यूरेट हो नहीं सकता है, कभी कभी बात सही निकल जाती है, ट्रेंड सही पकड़ लेते हैं, वो एग्जैक्ट हो नहीं सकता है, ये गिवन दैट कि इसकी एक लिमिटेशन है एग्जिट पोल की, वो कभी। लेकिन मैंने उस दिन आपको कहा था कि जमीनी हकीकत कुछ और है कि ममता बनर्जी देखिए बहुत पर्सनली वो बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर मतलब बहुत पॉपुलर है, लेकिन उनकी पार्टी में बहुत परेशानी है। उनकी पार्टी इज सीन एज अ पार्टी ऑफ, सॉरी मैं शब्द का उपयोग करते हुए मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन पार्टी असामाजिक तत्वों से भरा पड़ा पार्टी है, ऐसा उनके पार्टी के बारे में माने। करप्शन बहुत है, असामाजिक तत्व का है।
बंगाल में कहते हैं उसको पाड़ा का पोल, मतलब टर्फ की लड़ाई। ये मेरी जमीन है, ये मेरा पिच है, ये मेरा फील्ड है, मैं इसको किसी को जाने नहीं दूंगा और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, हिंसा का किसी भी लेवल पे जा सकता हूं। तो ये टीएमसी की खासियत रही है। टीएमसी ने इसे बिल्कुल उन्हीं से इनहेरिट किया है जिसको उन्होंने सत्ता से हटाया, दैट इज लेफ्ट फ्रंट। दे बिलीव्ड इन वायलेंस। ममता बनर्जी की पार्टी भी बिलीव्स इन वायलेंस। ये पहली बार ऐसा हुआ है, आप देखिए वर्ष कई दायकों के बाद, कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में चुनाव शांतिपूर्वक, एक भी हत्या नहीं हुई। आई टेल यू, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस चुनाव की, डेमोक्रेसी के लिए तो है ही, वेस्ट बंगाल के लिए भी, कि शायद ये एक मोड़ है जहां से वायलेंस वाली जो पॉलिटिक्स है, वायलेंस वाली जो राजनीति है, उससे वेस्ट बंगाल शायद मुड़ जाए, और हम यही करते हैं। तो बस एक क्षण में आपको बता दूं यज्ञ भाई, जो आपका मूल प्रश्न था, इस बार कैसी स्थिति है, मुझे ऐसा लग रहा था और अभी भी लग रहा है कि ममता दीदी बहुत पॉपुलर है, उनकी पार्टी को थोड़ी सी एज है, लेकिन उनके हाव भाव पिछले 2-4 दिनों में आप देखें, उनके हाव भाव, उनके पार्टी के हाव भाव और उनकी बॉडी लैंग्वेज ये दिखा रही है कि ममता दीदी इस बार बहुत ही नर्वस है, उनकी पार्टी बहुत ही नर्वस है। ये एकदम टच एंड गो वाला मामला है, 19-20 का मामला है, प्रचंड बहुमत तो किसी को नहीं मिलने वाला है, इतना क्लियर है। बिल्कुल सही बात है। उमर जी, आप भी देखेंगे जिस तरीके से बहुत ही अच्छी बात की प्रदीप जी ने, और प्रदीप जी आपने जिस तरीके से बताया कि नहीं अभी 48 घंटे ही है, मगर ये 48 घंटे में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में सबकी नज़र है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और जिस तरीके से उमर जी आपने भी देखा होगा कि ममता बनर्जी जो स्ट्रांग रूम के बाहर 4 घंटे तक बैठी रही, उन्होंने ये भी बोला कि नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी, जहाँ पे उन्होंने पिटीशन भी की कि नहीं हमें इस जो मतगण जो वोटिंग की बात है और जो रिज़ल्ट के दिन हमें सेंट्रल के कोई भी इलेक्शन कमीशन के अधिकारी नहीं चाहिए, हमारे ही चाहिए। ऐसी बात उन्होंने सुप्रीम में भी रखी, मगर सुप्रीम ने उसको खारिज भी कर दिया। सो इस बार जिस तरीके से ममता बनर्जी की बात करें, जो नर्वसनेस दिख रही है इस बार, और उसके ऊपर से लग रहा है कि नहीं कुछ ना कुछ तो होगा इस बार ये पश्चिम बंगाल में। आप किस तरीके से देख रहे हो उसको भी? देखिए, जो घबराहट वाली बात है, नर्वसनेस की बात है, प्रदीप जी ने भी कही, आपने भी कही, वो सच है, क्योंकि उनको अभी अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं है। उन्होंने एक जगह बोल दिया कि इस बार टीएमसी जो है वो 300 सीटें ले जाएगी बंगाल में, 300 क्रॉस कर देगी, तो उन्होंने, जबकि 294 टोटल सीटें हैं, तो उनका अपने ऊपर अभी नियंत्रण नहीं है इस वक्त, क्योंकि बीजेपी का जो फुटप्रिंट है बढ़ता जा रहा है। एक और चीज, जब बंगाल में एसआईआर हो रहा था और एसआईआर के फॉर्म्स निकल रहे थे और उसके लाइनों में लोग लग रहे थे, तो ममता दीदी ने खुद जाकर वो केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में एज अ लॉयर। उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्यों करा? क्योंकि उनको ये घबराहट थी कि ऐसा ना हो कि जो ये एसआईआर फॉर्म्स की वजह से कुछ वोटर्स कट जाएं मेरे, या कुछ लोगों को आधा वोटिंग आईडी कार्ड ना मिल पाए, या लोग अगर गुस्सा हो तो वो गुस्सा जो है वो सरकार पे ना निकल जाए, ममता दीदी के सरकार पे वो गुस्सा ना निकल जाए कि हमें लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो ये दिखाने के लिए उन्होंने रैलियां भी निकाली, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ाई भी करी कि भाई ये एसआईआर यहाँ नहीं होना चाहिए। तो वो भी फ्रंट फुट पे आकर खेल रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त उनकी जो पॉलिसीज हैं उससे आम लोग जो हैं, खासतौर पे जो बंगाल के जो हिंदू हैं, वो नाराज हैं। और वो सही वजह से नाराज हैं, क्योंकि जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स वहां पे हुई है ममता दीदी की तरफ से माइनॉरिटीज को लेके। अभी बांग्लादेश के एक स्पीच बहुत वायरल हो रही थी वहां के कमेंटेटर की। उन्होंने कहा बांग्लादेश के कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो जितने भी हमारे बांग्लादेशी अभी बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, उनको वहां से निकाल दिया जाएगा और बांग्लादेश में रेफ्यूजी क्राइसिस हो जाएगा। तो अब अगर कोई बीजेपी का सपोर्टर नहीं भी है, वो भी ये देखकर सोचेगा कि भाई अगर ऐसा ही है तो फिर बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, हमारे देश में ये इलीगल बांग्लादेशी कर क्या रहे हैं ये। तो ये जो पॉलिटिक्स ममता दीदी ने वहां करी है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर हर ओन गुड। उनको शायद ये नहीं करनी चाहिए थी, और अब आम हिंदू में, आम सिविलियन में जो है वो गुस्सा है, और वो गुस्सा जो है वो बीजेपी को वोट के फेवर में निकलता नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये अपना जो कर्मा है ये टीएमसी का।
बिल्कुल बिल्कुल सही है। प्रदीप जी, साथ में अगर हम साउथ बेल्ट की बात करें, वहाँ पे भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मेहनत की थी, सब लोग यही बोल रहे हैं कि नहीं, तमिलनाडु और केरल में, और स्पेसिफिक में अगर बात करूँ तो केरल में भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा लास्ट टाइम भी नहीं ओपन हुआ था, इस बार भी पता नहीं सिंगल डिजिट में आएंगे कि नहीं आएंगे। किस तरीके से देख रहे हैं आप साउथ बेल्ट को, और वहाँ पे भी केरलम और तमिलनाडु के बारे में आप क्या कहोगे? साउथ बेल्ट जब कहा तो उसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका भी आ जाता है। कर्नाटका में उनकी तो सरकार बन चुकी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में टीडीपी उनके सहयोगी हैं। तेलंगाना में उनकी अच्छी पकड़ है, बस पकड़ है, सरकार नहीं बनी है। लेकिन रह गई बात अब जो आपने कहा केरलम और तमिलनाडु, ये दोनों राज्य अंग्रेजी में कहते हैं ना, टफ नट टू क्रैक फॉर बीजेपी। बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि देखिए केरलम में बहुत लोग, कम्युनिस्ट लोगों का गढ़ रहा है, एंड साथ में यूडीएफ, तो यूडीएफ एलडीएफ के बीच में स्विंग होता रहा है। इस बार ऐसा ही माना जा रहा है कि शायद यूडीएफ आगे आ जाए, लेकिन बीजेपी पिछले कई दशकों से, पिछले 2 दशक से कम वहां बहुत मेहनत कर रही है केरल में, और 1-2 सीट वो लोग ले भी गए हैं। लेकिन बस आपने बिल्कुल सही कहा यज्ञ, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि सिंगल डिजिट तक ही रह पाएंगे, क्योंकि रसाकसी एलडीएफ और यूडीएफ की बहुत जबरदस्त है। हालांकि एलडीएफ और यूडीएफ जब केंद्र की बात आती है, लोकसभा की बात आती है, तो दोनों साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और जब राज्य में लड़ रहे हैं तो पिछली बार भी मैंने कहा था, राहुल गांधी जी ने क्लियरली बोला था कि चीफ मिनिस्टर जब केरल के हैं, वो केरलम के लोगों को डिसीव कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उनको धोखे में रख रहे हैं। तो केरल की जनता बहुत ही प्रबुद्ध जनता है, वो देख रही है कि ये लोग अभी कैसे लड़ रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले जब लोकसभा की चुनाव हो रहा था, उस समय तो ये लोग साथ में थे, और आज एक दूसरे के ऊपर तहमत लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। तो इसका कुछ फायदा बीजेपी को मिल जाए तो कुछ ही मिले, ज्यादा नहीं मुझे नहीं लग रहा है। केरल की बात है। और तमिलनाडु तो हमें सबको मालूम है कि वो द्रविडियन आइडेंटिटी, जो कि ममता दीदी बंगाल में कर रही है, वो बंगाली अस्मिता, बंगाली आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रही है, खुद की लड़ाई। इस बार तो अस्तित्व उनका भी दांव पर है। तो ये तमिलनाडु में द्रविडियन आइडेंटिटी की जो लड़ाई है, इसमें भाजपा को घुसलाना बहुत मुश्किल है। हालांकि उनके पास लोकल लीडर्स हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि ममता दीदी ने बंगाल में कह दिया कि ये बाहर की पार्टी है। हकीकत ये है कि इसके संस्थापक तो बंगाल के हैं। जनसंघ के संस्थापक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से थे। लेकिन ये भाजपा की भी कमी कह सकते हैं कि वो ये लोगों तक को ये बता नहीं पाया कि भाई हम बाहर के पार्टी नहीं है, हमारे संस्थापक तो ये इसी मिट्टी से, टीएमसी का जो स्लोगन है, माँ माटी मानुष, मदर सॉइल एंड पीपल, तो ये इसी माटी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी निकल के आए। ये भारतीय जनता पार्टी बंगाल के लोगों को बोल नहीं पाई है, समझा नहीं पाई। ठीक उसी तरह तमिलनाडु में उनके भी लोकल लीडर्स हैं, बहुत पावरफुल, बहुत ही यंग हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं, लेकिन और वो द्रविडियन है, वो कोई बाहर के नहीं है, वो द्रविडियन है। लेकिन समहाउ वो लोग ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी भी द्रविडियन पॉलिटिक्स के अंदर थोड़ी तह लगा रही है। तो थोड़ा मुश्किल है तमिलनाडु में भी। हालांकि सिर्फ एक सेंटेंस बता दूं, फिर आप अपनी बात रखें। मुझे लग रहा है कि कुछ वोट विजय ले जाएंगे टीवी के पास, और वो जो है विजय जो वोट ले जाएंगे वो माइनॉरिटी वोट ही ले जा रहे हैं। पहली बार बहुत ही खुल के, पहली बार तो चुनाव ही लड़ रहे हैं, बहुत ही के उन्होंने बताया लोगों को। आज तक उन्होंने कभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी कि मैं क्रिश्चियन हूं। पहली बार उन्होंने लोगों को बताया कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं माइनॉरिटी से आता हूं। तो कुछ जो माइनॉरिटी सीट, जो वोट्स थे, जो कांग्रेस एनडीएम के जो साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनके पास जाना था, शायद टीवी के ले जाए, विजय ले जाए वो वोट। तो कुछ सीटों पे मार्जिन पे असर पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी एआईएडीएमके के साथ चुनाव लड़ रही है ना, और एआईएडीएमके बिल्कुल विभक्त हाउस है, इट्स अ डिवाइडेड हाउस। एआईएडीएमके ईपीएस एंड ओपीएस, ईपीएस तो अब डीएमके में ही चले गए हैं, ओपीएस चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, नटराजन उनकी
उनको अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं। तो बहुत मुश्किल दिख रहा है दक्षिण में बीजेपी को अपने बूते पर कुछ नया करने का। बिल्कुल As of- बिल्कुल उमर जी आप से देख रहे हैं तमिलनाडु और केरलम के रिजल्ट को भी। हाँ, देखिए, भारत एक बड़ा विचित्र देश है। यहाँ पर असल में अगर आप यूरोप से कंपेयर करें तो हर राज्य अपने आप में एक देश की तरह है, छोटा सा। मतलब जो एथनिसिटी है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे देश में, तो हर स्टेट का अपनी एक कैरेक्टर है, अपना एक डीएनए है, आप कह सकते हैं। बंगाल का अपना एक डीएनए है, केरला का अपना एक डीएनए, एंड इट्स अ मिरेकल दैट वी आर वन नेशन, एंड इट्स द ब्यूटी ऑफ आवर नेशन। तो अभी अगर हम केरला की बात करें, केरलम की बात करें या तमिलनाडु की, तो प्रदीप जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि भाई वहां का जो कैरेक्टर है, वहां का जो अवाम है, वो कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स को बहुत टाइम से उन्होंने अपनाया है। तो जो रस्साकशी है केरलम में, वो यूडीएफ एलडीएफ की ही है, और मुझे लग रहा है कि यूडीएफ इस बार शायद 10 साल का उनका स्पेल जो एलडीएफ का वो टूटेगा और यूडीएफ ही वापस आएगी कांग्रेस के साथ। एंड दैट इज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस जो अभी कांग्रेस के पास बची हुई हैं। कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने स्पीच करी थी अभी ममता बनर्जी के खिलाफ भी, कि भाई वो ऐसी हैं और वैसी हैं, और मुझे लग रहा है कि उसका फायदा जो है वो कांग्रेस को होना हो, बीजेपी को जरूर होगा बंगाल में। लेकिन अगर वापस हम केरलम पे जाएं तो मुझे लगता है कि यूडीएफ शायद वापस आएगी। और प्रदीप जी का असेसमेंट बिल्कुल सही है कि तमिलनाडु में वहां पर भी जो है बड़ा एक इंटरेस्टिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां की पॉलिटिक्स जो है वो द्रविडियन आइडेंटिटी के अराउंड है, तो इट विल बी बिटवीन डीएमके एंड एआईडीएमके। आई थिंक एआईडीएमके विल सरप्राइज एवरीबडी, दे विल हैव हायर फुटप्रिंट, उनका जो वोट है वो वोट शेयर बढ़ेगा इस बार। लेकिन शायद सरकार बनेगी नहीं बनेगी उस बारे में नहीं कह सकते। आई थिंक डीएमके माइट बी फॉर्मिंग द गवर्नमेंट अगेन। बट यहाँ पे टीवीके का रोल जो है बड़ा एक तरह से इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लेट्स सी 2 days मोर एंड वी विल गेट टू नो। बिल्कुल इस बार कई ऐसा भी है कि डीएम की अगर सरकार बनाने जाएगी तो यहाँ पे गठबंधन भी हो सकता है, एआईएडीएम के, भाजपा और टीवीके का। ऐसी भी चर्चाएं सुनने को मिली है कि नहीं, ऐसा भी अगर कुछ होएगा तो फिर एआईएडीएम के भी सरकार बना सकता है। और साथ में एक 30 सेकंड में आप दोनों से मैं जवाब चाहूँगा आसाम और पुडुचेरी के बारे में। उमर जी। आसाम और पुडुचेरी में मुझे लगता है कि उतना नेक टू नेक नहीं है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत पॉपुलर हैं और आसाम के लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उनके मुकाबले पे अभी मुझे नहीं लगता आसाम में कोई है। तो आई थिंक ऑब्वियसली बीजेपी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। सिमिलरली पुडुचेरी में भी मुझे लगता है कि एनडीए बीजेपी की ही सरकार बनेगी। और आसाम की जो पॉलिटिक्स है वो अपने आप में क्योंकि वो गढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ जो क्या कहते हैं यूपी और हिंदी हार्ड बेल्ट एक अलग पॉलिटिक्स है, लेकिन आसाम में भी बिकॉज ऑफ अ डायनामिक लीडर लाइक हेमंता बिस्वा शर्मा, उनकी वजह से आई थिंक बीजेपी का फुटप्रिंट काफी स्ट्रांग है। तो आई थिंक वहां पे बीजेपी सरकार बनने वाली है। दैट इज व्हाट आई थिंक। प्रदीप जी यज्ञ भाई, कुमार जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पुडुचेरी में एंटी इनकम्बेंसी जैसा नहीं दिख रहा है, हालांकि वहां पर कई बार ऐसा होता है ना एंटी इनकम्बेंसी, और दक्षिण में ये स्विंग रहा है। केरल में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, एक बार डीएमके एक बार एडीएमके, लेकिन पुडुचेरी में ऐसा नहीं लग रहा है। सो पुडुचेरी में सरकार की पुनरावर्तन हो सकती है। असम में जैसा कि उमर जी ने भी फिर कहा, मैं भी वही रिपीट करूंगा, हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत ही पॉपुलर है वहां। और साथ में उन्होंने भी जो पॉलिटिक्स है, अगर माफ करना ये शब्द मैं यूज करूंगा फिर से, डिविजिव पॉलिटिक्स पे बहुत ध्यान दिया है और उन्होंने वोटर्स को अच्छे से डिवाइड करके रखा है। गुड थिंग इज कि वहां पर बंगाल की तरह मुसलमानों की जो डिवीजन और हिंदुओं का जो डिवीजन होता है, बंगाल में वो बहुत ही प्रोमिनेंट आ जाता है, क्योंकि वहां पर प्रतिशत जो है लघुमत की जो माइनॉरिटीज की लगभग 30 से 35% हो जाती है। वो असम में उतना प्रतिशत नहीं है। तो अच्छा डिवीजन कर रखा है और पॉपुलर है, काम अच्छा किया है, ऐसा लग रहा है। वहां पर भी विकास की गति बहुत तेजी से बढ़ रही है। गुवाहाटी आप जाइए प्रदीप जी, एक लास्ट एंड फाइनल सवाल आपको।
30 सेकंड में आप जवाब देना। ये किस तरीके से जो राजकारण अभी देखने को मिल रहा है, अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो लोकसभा में सब लोग एक साथ हो जाते हैं, और अगर हम जो विधानसभा की बात करें तो राहुल गांधी जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं बंगाल में कि नहीं ममता दीदी के थ्रू ही अभी भाजपा यहाँ पे एंटर कर रही है, जिस तरीके से तमिलनाडु में कांग्रेस का जो स्टेटमेंट दिखा, तो वहाँ पे ऐसा नहीं रहा है कि नहीं जो जनता है वो कहीं पे कंफ्यूज्ड है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोकसभा की बात करें वहाँ पे तो सब लोग एक हो जाते हैं, यहाँ पे एक ऐसा हो रहा है तो हम कहाँ पे वोट दें, यहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए कहीं पे बीजेपी के साथ सब लोग वोटिंग करते हैं। क्या कहोगे आप उसके बारे में भी? इससे पहले प्रदीप जी बोले, मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूँ कि असल में लोग इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि कांग्रेस कंफ्यूज है। सबसे बड़ी कंफ्यूज कांग्रेस है, उनके पास अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं बची है, तो वो अलायंस राहुल गांधी वहां जाके कुछ और स्पीच देते हैं और लोकसभा में उनको सरकार भी बनानी है, तो वो वहां पे अलायंस बना लेते हैं, तो वो बड़ा कंफ्यूजन है। तो लगता है कांग्रेस सबसे बड़ी कंफ्यूज पार्टी है। प्रदीप जी। बिल्कुल प्रदीप जी 30 सेकंड। बहुत ही देखिए, टीएमसी तो शुरू से ही कांग्रेस को लेकर असहज रही है, शुरू से ही। आप देखिए इंडिया अलायंस में भी बहुत देर से उन्होंने ज्वाइन किया था। कभी कहीं पर भी होता है जब लोकसभा में कुछ आता है, एसआईआर के खिलाफ वो लोग कुछ करना चाहते थे, तो लास्ट पार्टी टू ज्वाइन एनी इनिशिएटिव, कांग्रेस द्वारा शुरू किया हुआ इनिशिएटिव जो होता है कांग्रेस ही शुरू करती है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसके पास पैन इंडिया फुटवर्क है, नेटवर्क है। तो टीएमसी तो हमेशा सहज रही। और जो जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि राहुल गांधी जी ने केरल के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी स्टेटमेंट दिया है और ममता जी दीदी के खिलाफ भी स्टेटमेंट दिया, तो जनता तो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कंफ्यूजन से ज्यादा जनता बुद्धिमान भी है, उनको मालूम है ये लोकल इलेक्शन है और वो डिस्क्रिमिनेट, आई मीन वो दे विल बी एबल टू डिसर्न द रियलिटी, हो क्या रहा है। जैसा आपने कहा यज्ञ भाई, मैं भी वही सेंटेंस रिपीट करूंगा, जनता यही कह रही है भाई हो क्या रहा है। दिल्ली में आप साथ में बैठते हो, साथ में लड़ते हो, और जब राज्य में आते हो तो कहते हो कि हमारा कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से। बिल्कुल હવે એ જ સવાલ છે કે ના આ વખતે ક્યાં કન્ફ્યુઝન તો જોવા મળી રહ્યું છે, પણ તેની સાથે આગામી સમયમાં રિઝલ્ટ અત્યારે તો કઈ રીતનું જોવા મળશે। ઉમરજી અને પ્રદીપજી આ બંનેનો આભાર અમારી સાથે આ ચર્ચા વિચારણામાં જોડાવા માટે, થેન્ક યુ સો મચ। તો દર્શક મિત્રો આજના વિશેષ કાર્યક્રમને આપશે નમસ્કાર।